Welcome to our channel Instrumentation Question and Answer. Professionals, today we will discuss regarding the control valve. What is the control valve? Why we are using the control valve? And parts of the control valve. In the control valve, it is very important in the field, in the process, and for the interview. Important questions today we will discuss. So before start the session, we are requesting to you, if still you didn't subscribe our channel, so please subscribe our channel and press the bell icon button, because you can receive our latest videos immediately, and you will become in the successful in your profession. So let's start. What's the control valve? Control valve, it's in the like last videos we described you, we explained you. Control valve is the final control element. It is controlling our process, which is in the liquid or solid form. We have we draw the figure of the control valve. This is our actuator, in the called internal parts diaphragms. Before discuss regarding the parts, we can explain you in the other words what's the control valve. Valve is a mechanical device that control the flow of fluid and pressure within a system or process. Or in the second words, a valve control system or pressure, fluid flow or pressure, by performing the function like stopping and starting fluid flow. And controlling, varying or throttling the amount of fluid flow from by the throwing under the plug, controlling the direction of fluid flow, for example from one direction to other direction. Second, regulating downstream or process pressures. Like if the pressure is throwing from here, this is the upstream and this is the downstream. Here we are, this is the downstream. So control valve regulating downstream or process pressure. So let's discuss how many parts we have the control in the control valve. Mainly in the control valve, main are the two parts: actuator and body. In the actuator and body, other internals, subparts there, and after that accessories there. So inshallah today we are explain you what is the main parts of the control valve. Like this is the our actuator. In the actuator internal there is the diaphragm and spring is there for operating loading. And second, this is the air supply port. This is the diaphragm. In the call we are, this is the total overall, this is the actuator, and this is our jug. This part of the control valve we call, this is the yoke. This is the accessories, we will discuss in the later, and this is the stem, the internal. This is our stem. In the between stem from actuator to the plug, in the between center we call this is a stem coupling. Other words we say connector, we can say the couplings, we can say. And the overall this is we call the stem, and this is the plug.
is which is connected to the stem, its plug. It's stem coupling, and this is the plug. And overall, this part of the control valve we call the control valve body. Control valve body. In today's session, we will try to cover because there is a lot of comments asking some previous videos questions. So today we will answer that comments also. We will cover the maximum comments, maximum questions. We will try to answer today. If some remains, we will cover these questions in the next video. Today we can say the seconds only. You can see in the figure, this is the complete one actuator, this is the yoke, and this is the body. Internal plug is there, this is the stem and stem coupling and stem connector, and this is the accessories like control valves, accessories, positioner, volume booster, and rocket relay, air accessories, regulators, pressure gauges. These all lemon switches, feedback switches, all which are, this is the accessories of the control valve. Today our main session, the parts of the control valve and what is the control valve and the definition of the control valve. Control valve definition already we explained you. It is the final control element in our control loop. This is the final controller element in our control loop. Second, the words we explained you, what is a mechanical device that control the flow of fluid and pressure within a system or process. Second, we will explain these parts in the Urdu Hindi language. So professionals, जैसा कि आज हमारा सेशन है कंट्रोल वाल्व पार्ट्स और कंट्रोल वाल्व की डेफिनेशन, कंट्रोल वाल्व क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका काम क्या है। तो सेशन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आप बन सकें सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो बढ़ते हैं कि कंट्रोल वाल्व क्या है। कंट्रोल वाल्व एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है आपके कंट्रोल लूप में। कंट्रोल वाल्व जो है वो हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्लो और फ्लूइड को कंट्रोल करता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में। वाल्व जो है वो सिस्टम के फ्लूइड के फ्लो और प्रेशर को कंट्रोल करता है और डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड की जो है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है आपके डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को और प्रेशर को। तो बढ़ते हैं कि इसमें मेन पार्ट्स हमारे आज कंट्रोल वाल्व के कौन से हैं। ये हमारा एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर है और ये इन द सेंटर ये योक है और योक के साथ ये कंट्रोल वाल्व की बॉडी है। तो इंटरनल पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि ये एक्चुएटर है, एक्चुएटर के अंदर एक डायाफ्राम रहता है, स्प्रिंग रहता है और डायाफ्राम अपर लोअर जो है वो प्लेट्स रहती हैं और इसके साथ में ये हमारा स्टेम है, ये स्टेम कनेक्टर है और स्टेम कनेक्टर के साथ हमारा ये ग्लैंड, पैकिंग, फॉलोअर, पुशर जो रहते हैं और इसके साथ में स्टेम के साथ में कनेक्टेड डायरेक्टली होता है ये हमारा प्लग है जो कि इंसर्ट होता है बॉडी के अंदर। तो ये कंट्रोल वाल्व की हमारी बॉडी है, जैसा कि ये इनलेट है, ये आउटलेट है। तो यहाँ से हमारा फ्लूइड आता है और ये एज़ पर हमारा सिग्नल जो है ये प्लग जो है वहाँ से उतना ही फ्लूइड को जाने देता है जितना हमारा सेट पॉइंट है। तो ये डाउन स्ट्रीम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वॉल बॉडी है, ये प्लग है, ये स्टेम है और ये पोजिशनर है। पोजिशनर कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स में नहीं आता, ये एक्सेसरीज में आता है।
इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कंट्रोल वाल्व की एक्सेसरीज कौन सी हैं। तो कंट्रोल वाल्व की एक्सेसरीज में आता है पोजीशनर, वॉल्यूम बूस्टर, लॉकअप रिले, एयर सेट, आपका एसओबीज आ जाएंगे, सोलनॉइड वाल्व जिसको बोलते हैं, लिमिट स्विचेस आ जाएंगे, फीडबैक स्विचेस आ जाएंगे, तो फीडबैक डिवाइस आ जाएगी। ये एक्सेसरीज में आता है। कंट्रोल वाल्व्स के पार्ट्स में जो है वो आपका मेन, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स क्या हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स कौन कौन से हैं। मेन पार्ट्स कंट्रोल वाल्व के होते हैं वो दो ही होते हैं, एक्चुएटर और बॉडी। इन एक्चुएटर और बॉडी को मिलाने वाली जो जोक होती है, यानी एक्चुएटर, जोक और बॉडी। इंटरनल, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके अंदर डायाफ्राम है, स्प्रिंग है और स्टेम है, प्लग है, और ये एरिया जो है ये कंट्रोल वाल्व की बॉडी में आता है। तो आज के इंटरव्यू में हम जो है आज के सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमारे प्रोफेशनल्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो कमेंट्स के आंसर जो हैं वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ कवर करेंगे आज और कुछ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्रोफेशनल्स कंट्रोल वाल्व्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स जो हैं वो आज आपने लर्न किए हैं। तो नेक्स्ट जो है हम सेशन जो है वो हमारा कमेंट्स के आंसर जो होते हैं कि उसको हमने कवर करना है, ताकि ये भी देखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के जो आंसर जो हैं वो दे सकें, लेकिन टाइम कम होता है, इससे वीडियो लंबी हो जाती है। तो आज के सेशन में आपने ये लर्न कर लिया कि कंट्रोल वाल्व जो है, कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स जो हैं वो आज के सेशन में हमने लर्न किए हैं। कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स एक बार हम आपको दोबारा रिव्यू कर देते हैं। ये हमारा एक्चुएटर है, इसके इंटरनल में ये डायाफ्राम रहता है, स्प्रिंग रहता है, और डायाफ्राम अपर लोअर जो है वो प्लेट्स रहती हैं, और ये हमारी एयर इनपुट जो है वो पोर्ट है, जो कि एयर हमारी आती है पोजीशनर से, वॉल्यूम बूस्टर से, या दूसरी कोई भी डिवाइस से जो है उससे इस वाल्व को, एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए जो प्रेशर हमें दिया जाता है ये वो पोर्ट है। तो इसके साथ में जो हमारी योक जो है ये कनेक्टेड है, योक कनेक्टेड है, और इसके साथ में इसके जो के सेंटर में ये स्टेम है जो लीड करती है टू प्लग। ये प्लग वो पार्ट होता है कंट्रोल वाल्व का, प्लग के अराउंड में केजेस रहती हैं, वो डिफरेंट साइजेस की, एज़ पर स्पेसिफिकेशन, एज़ पर सीबी ऑफ द कंट्रोल वाल्व जो हैं वो केजेस भी रहती हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कंट्रोल वाल्व के प्लग और पार्ट्स के बारे में हमने एक वीडियो शेयर की थी, आप उस वीडियो को बार बार देखिए ताकि उसमें आपको समझ आए कि कंट्रोल वाल्व के प्लग्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। प्लग के बारे में और केजेस के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में किए जा सकते हैं, उस वीडियो को स्किप मत कीजिए। कंट्रोल वाल्व के प्लग और केजेस जो हैं वो कौन सी टाइप के प्लग हैं, कौन सी टाइप की केजेस हैं, उस वीडियो में हमने आपको डिस्प्ले किए हैं। उस वीडियो को बार बार देखिए ताकि कंट्रोल वाल्व में आपको किसी किस्म की कोई डाउट ना रहे और इंटरव्यू में आपको कोई जो है वो गिल्टी फील ना हो। तो जैसा कि अभी नेक्स्ट एक्सेसरीज़ का हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेसरीज़ में पोजीशनर रहता है, वॉल्यूम बूस्टर रहती है, लॉकअप रिले रहती है, एयर सेट रहता है, एसओवी रहता है, लिमिट स्विच रहता है, और फीडबैक स्विचेस होते हैं। तो ये एक्सेसरीज़ में आता है। कंट्रोल वाल्व्स के पार्ट्स में जो है ये चीज़ें नहीं आती, ये एक्सेसरीज़ में आती हैं। कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स में जो है वो आपका एक्चुएटर, योक और बॉडी, मेन 3 पार्ट्स कंट्रोल वाल्व के होते हैं। कोई भी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स कौन से हैं, तो अगर आपने ये 3 पार्ट्स कंट्रोल वाल्व के बता दिए तो इंटरव्यू ये समझ आएगा कि आप प्रोफेशनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे एक्सेसरीज़ के बारे में किया जा सकता है। तो एक्सेसरीज़ का हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सेसरीज़ क्या हैं। तो इंशाल्लाह एक्सेसरीज़ के को 1 बाय 1 हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वॉल्यूम बूस्टर के बारे में ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं
कि वॉल्यूम बूस्टर क्या होती है, और नेक्स्ट एक्सेसरीज जो है वो भी वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम जो है कि कमेंट्स में हमारे प्रोफेशनल ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। उसमें हमारा एक लास्ट में वीडियो था एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन, एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन। उसमें हमने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो गेज प्रेशर ट्रांसमीटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कैलिब्रेशन उस ट्रांसमीटर की हम करते हैं गेज प्रेशर ट्रांसमीटर की, एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन उस तरह से नहीं की जाती। तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन की कंप्लीट वीडियो आपने उसको देखना है। उसमें कमेंट्स में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि कंट्रोल वाल की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, कंट्रोल वाल की एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर की जो वैल्यू जो है वो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कंट्रोल वाल की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, ताकि आपकी नॉलेज में जो है वो इजाफा हो और आप बन सकें प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल कंट्रोल जो उसका एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर या गेज प्रेशर ट्रांसमीटर या कोई भी प्रेशर ट्रांसमीटर की वैल्यू निकालने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं। आज वो इक्वेशन आपके साथ हम जो है वो शेयर करेंगे ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप कहीं भी फील्ड में जो है वो वैल्यू निकालने में आपको कोई परेशानी ना हो। जैसा ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये आप गेज प्रेशर भी हो सकता है, ये जो है गेज प्रेशर भी हो सकता है, एब्सोल्यूट प्रेशर भी हो सकता है, और या किसी भी टाइप का ट्रांसमीटर जो है उसकी वैल्यू जो हम उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाती है। जैसा इसमें इक्वेशन हम यूज़ करते हैं परसेंटेज इनटू स्पैन ओवर 100 माइनस LRV। तो ये इक्वेशन जो है ये यूज़ की जाती है ये इक्वेशन जो है इसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी जो रेंज है हमारी कैलिब्रेशन रेंज, उसका वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन आप यूज़ कीजिए, चाहे कितनी भी रेंज हो, -100 टू -80 टू +20 है, -1 टू 9 PSI है। तो ये इक्वेशन जो है जो आपने यूज़ करनी है परसेंटेज में, जैसा कि हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। परसेंटेज सपोज़ हमारा जो रेंज है, हम एक रेंज निकालते हैं यहाँ पे -1 अप टू 9 PSI, -1 टू 9 PSI। तो -1 टू 9 PSI स्पैन, जैसा कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि स्पैन क्या होता है। स्पैन क्या होता है? URV माइनस LRV, URV माइनस LRV, ये हमारा स्पैन होता है। तो URV हमारी कितनी है? 9 -1, ये हमारी LRV है। तो स्पैन हमारा कितना हुआ? 10, ये हमारा स्पैन है, 10 हमारा स्पैन है। अब हम जो है वो एज़ पर जो इक्वेशन हमने आपको बताई है कि उस इक्वेशन के मुताबिक हमने 25% निकालना है कि 25% में हमारी वैल्यू कितनी होगी। ये हमारी कैलिब्रेशन रेंज है, -1 टू 9, -1 टू 9 PSI, ये हमारी कैलिब्रेशन रेंज है।
अभी ये हमारी वैल्यू है। हम इक्वेशन यूज़ करते हैं परसेंटेज इंटू स्पैन ओवर 100 माइनस LRV। अभी परसेंटेज हमने 25% निकालनी है। 25% इंटू स्पैन हमारा कितना है 100, ये हमारा स्पैन है ओवर 100 माइनस LRV, ये हमारी माइनस LRV है। तो प्रोफेशनल्स जैसा कि ये हमने इक्वेशन बना, ये हमारी इक्वेशन है परसेंटेज इंटू स्पैन डिवाइडेड बाय 100 माइनस LRV। तो हमने 25% निकालना है। ये हमारी रेंज कितनी है, हमारी रेंज है -1 to 9 PSI। ये हमारी एब्सोल्यूट रेंज है, कंपाउंड रेंज है, हमारी एब्सोल्यूट रेंज है कि माइनस में भी है, वैक्यूम में भी है और गेज प्रेशर में भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, 25% हमने निकालना है। अभी हम यहाँ इस एज पर दिस इक्वेशन 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस LRV, 25 इंटू 10 तो ये हमारा कितना हुआ, $250 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1